don't take failure too much serious, because failure is the key of success, and you should gain a lot of knowledge from the failure. So don't take failure as a failure, because this failure will give you the way of success. So don't take failure as failure, accept it and prepare for the next exam. Hello guys, welcome to Camel Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am your host Parneet Kaur, an educator of English for SSC category, and today we have Shumadeep with us from West Bengal, who has qualified various exams of banking, that is SBIPO, IBPS-PO, clerical. So आपकी जो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जिनकी ये सारी ड्रीम जॉब्स होती हैं, उन्होंने सारी एग्जाम्स क्वालिफाई किए. तो जानते हैं हर अलग अलग एक्सपीरियंस एंड कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया एंड हाउ वाज हिज जर्नी एंड कैसा वो अभी बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूट होके फील कर रहे हैं. So let's welcome Shumadeep. Hello Shumadeep, how are you? Hi, I'm fine. How are you, ma'am? I'm good too. So Shumadeep, congratulations first. Thank you so much, ma'am. Great. तो आपको कैसा, अभी आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है आपकी? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं, अभी तक डीबी और मेडिकल हुआ. 18 अप्रैल को ज्वाइनिंग का डेट है. Okay. So very excited. 18th yes, April. Okay, nice. I'm so much excited. So as you told कि आपने SBI, IBPS, IBPS clerical, RRB clerical. Okay, RRB clerical भी आपने क्लियर किया है. तो फाइनली आप कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं? Like SBIPO is the dream job for all the banking aspirants. Okay. So मेरे को SBIPO ही ज्वाइन करना है. Okay, so joining SBIPO. And did you get the posting आपको अपने स्टेट में? हाँ, मेरे को कोलकाता रीजन मिल गया, तो मैं होम स्टेट में ही पोस्टिंग मिल गया. Okay, that's really great. So Shumadeep, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या आप शुरू से ही मतलब बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते थे, या फिर आपका कुछ और, मतलब आपकी अपनी 12th में आपने क्या किया एंड देन व्हाट्स योर प्लान? Actually ma'am, in 11 and 12 I have a dream for I want to be a doctor. Okay. But I could not get it because there was a lack of preparation. Actually I was dreaming about the doctor or the medical field. Okay. But I could not complete it because there is a lack of my preparation, and Okay. as it is my dream job, but I cannot put it. But at that time I got depressed, and then I decided to complete my graduation in physics. And Okay. then in 2020 I completed my graduation in physics honors, and Okay. then I started preparation for West Bengal Civil Services, our Okay. state civil services. So आपने पहले मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन की? 11-12 में 11-12 मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे Okay, थे. so you wanted to become a doctor? Yes ma'am. Okay, then आपका प्रिपरेशन आपको लगता है कि क्योंकि मेरे का अच्छा सा नहीं हुआ था. Okay, तो आपने फिर then what you decided? उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने क्या प्लान किया? So मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरे को एंड फिजिक्स का बेसिक मैथ ही है. सो मेरे को लगा कि फिजिक्स ले लूँगा तो अच्छा लगेगा, एंड आई हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड. Okay. So then I decided to take this as my graduation subject, and in 2020 I completed my graduation from Calcutta University. Okay. And then I started for competitive field. At first my target was West Bengal Civil Services. Okay. कारण मेरे को सिविल सर्विस का बहुत शौक है. सो अच्छा. मेरे को बट वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है ना, तो उसको 3-4 साल लग जाएंगे उस Right. प्रोसेस को कंप्लीट होने के. तो मेरे को एक सिक्योर जॉब चाहिए. सो मैं आई वांट टू स्विच टू इन बैंकिंग सेक्टर, एंड इन 2021 April after releasing of SBI clerical notification, Okay. I started my preparation, and the journey is still going. Okay. There are a lot of other exams Yes, गवर्नमेंट के. तो आपने बैंकिंग ही क्यों चूज किया? मतलब आप पहले वेस्ट बंगाल WPCS में जाना West चाहते Bengal थे? सिविल सर्विस में. Yes. Then like बैंकिंग में आप कैसे आ गए? क्योंकि मेरे फादर एक बैंकर है, वो रिटायर्ड बैंकर है, वो यूको बैंक में थे. सो Okay. एंड बहुत सारे रिलेटिव मेरे बैंक में, इवन SBI में बहुत सारे रिलेटिव है. तो आई वाज हैबिचुएटेड विद द बैंकिंग फील्ड. सो मेरे को एक बैंकिंग का शौक ही था. Okay. तो आई डिसाइडेड, एंड द बैंकिंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है. एक Agreed. 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाता है. Okay. तो मेरे को लगा कि मेरे को जो सिक्योर जॉब चाहिए एवं वो भी, तो मैं बैंकिंग सेक्टर में जा सकता हूँ.
Okay. So then I decided to go to banking sector. Okay, great. So आपने मेडिकल की 11-12 में प्रिपरेशन की, then you went for थोड़ा सा आपने WBS, उसमें तो आपको GS पढ़ना होता है. Yes, ma'am. And हम बैंकिंग में आते हैं तो there is lot of calculations and English and अच्छा खासा सिलेबस होता है. तो आपने कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की? लाइक लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन स्टार्ट भी करे नहीं है, करना चाहते हैं एंड रेफरेंस देते हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन करें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे होंगे प्रिपरेशन. तो आप अपनी जर्नी से ज़रूर उनको बताइए कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जा सकती है, आपने कैसे स्टार्ट की? Okay, so the basic funda banking exam is the practice, because the most required thing is speed. So I think you should complete your basic things first, clear all your concept, and then started practicing. Then it will again you can gain your increased speed. So I think at first you should complete all your basic things, like you should know how the syllabus, क्वांट्स में क्या क्या है, इंग्लिश में क्या क्या है, रीजनिंग में क्या क्या है, एंड क्वांट्स का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. देन आप प्रैक्टिस कर लिए, आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएंगे. ओके, तो आपने ग्रेजुएशन में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और आफ्टर ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन में. तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लाइक कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं बट दे आर कंफ्यूज कि हम पीओ के लिए प्रिपेयर करें या क्लरिकल के लिए प्रिपेयर करें. तो क्या उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है या फिर साइमल्टेनियसली एक ही साथ प्रिपरेशन हो जाती है उन दोनों की? ओके मैम, सो the best job in banking sector is SBI PO. So if you started preparation for SBI PO, then all your preparation will be completed. That means you don't need to prepare for other exam. Just preparing for SBI PO level and आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे. ग्रेट. मींस आप अगर प्रॉपर एक बेस लेवल की स्टार्टिंग विद द बेसिक्स एंड एकदम आपको क्लरिकल और पीओ नहीं समझ, क्योंकि आप जब पीओ की करेंगे तो आपको क्लरिकल भी हो जाएंगे. ओके, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है कि नहीं हम तो क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं, हम पीओ की करते हैं. तो यू प्रिपेयर वेल, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें. तो आप गाइस अगर आपने प्रॉपर स्टडीज की हुई है एंड देन आप दोनों एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं. तो हम आपने जैसे हम सब्जेक्ट वाइज इसको ब्रेक करते हैं, तो आपने मैथ्स की, जैसे आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है, तो मैथ्स की आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की फ्रॉम द बेस एग्जाम? एकदम. सो मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड आई हैड गुड एज अबाउट मैथ. सो एंड in math there is two things. One is fast track math, that means in that section we have quadratic equation, number series रहते हैं, and some DIs भी रहते हैं, जो जिसके लिए आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड अदर इज अरिथमेटिक, जिसके लिए आपका कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए. ओके. सो मेरे को आप कैलकुलेशन मीन्स फास्ट ट्रैक मैथ के लिए, आप कैलकुलेशन के लिए आप कुछ ट्रिक्स है, लाइक यू कैन रिमेंबर 1 to 20 टेबल्स एंड देन स्क्वायर अप टू 30, क्यूब अप टू 20 to 25, एंड डेली इस कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कीजिए. लाइक आई कैन गिव अ एग्जांपल, लाइक if we multiply 27 into 7, that means 27 is 20 plus 7. So multiply 20 into 7, 140, and 7 into 7, 49. So total is 189. That means all the calculations should be in mind. You don't need to pen and paper, just then it will decrease your time. That means you should first you should think about your calculation speed, and then you should go and practice, and then it will increase your speed. Because banking में we have statistics most important, जो जिसमें ज़्यादातर calculations ही होती है, तो सबसे ज़्यादा students को calculation पे work करना चाहिए. And माइंड कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पेन पेपर यूज करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना. आप माइंड में करेंगे तो उसको टाइम नहीं लगेगा. एंड प्रीलिम में आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करना है, तो आप जब जितना ज्यादा पेन पेपर यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम जाएंगे. तो as much as possible you can calculate in your mind. So this will decrease your time. Okay, great. And आपने मैथ्स की, देन वी कम टू इंग्लिश. तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की आपने? सो इंग्लिश, आई थिंक there is not so much preparation needed for English, because the most important things is reading habit. Okay. And there is certain things in our banking English like reading comprehension. For this you need good reading speed, because in prelims one passage and the passage is long, so as much as you time taking, and you will get less time. So do this as far like you can practice reading newspaper, then it will increase your reading speed. And do this with
concentration, because you don't need to read the passage second time. So if you can, you don't have time for that. yes. If you read that and first time carefully, then you don't need to read it second time. Okay. And then and there are certain things like parajumble, close test, filler, and for this I don't think that vocabulary is not needed so that much, because if your reading ability is good, then you have some third sense that you can using your third sense, you can choose your option. Like I think if there is 4 option, you can eliminate 2 or 3 option. Then you can, if you don't know the meaning of the word, you can using your grammar sense, you can eliminate like the irrelevant option and you can choose the right option. Okay. So आपने ग्रामर की प्रिपरेशन की, मतलब आपने ग्रामर पढ़ा या फिर आप बिना ग्रामर के कैसे करना चाहिए इंग्लिश के लिए ग्रामर की पॉइंट पे? आई थिंक ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रामर मैं बोला था कि वोकाबुलरी के क्वेश्चन की ग्रामर सेंस से लाइक आप जब पार्ट ऑफ स्पीच जान जाते तो आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगा, राइट? तो मैं ग्रामर की प्रिपरेशन निमिषा मैम से किए थे, निमिषा and she is very good, and even I recommend my friend who are preparing for SSC, WBCS to follow her 120 rules of grammar in YouTube, because she is very good, and I think doing her class I get a third sense. That means I don't need to remember all the rules. I can easily understand, but I can easily guess what is the problem, means what the error in the sentence. Okay. So I think this is helped me to get a good edge over grammar. Great. And what about vocabulary? Vocabulary को कैसे improve किया? वोकाबुलरी के लिए आप डेली न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छा है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका वोकाबुलरी बहुत अच्छा होंगे. एंड वोकाबुलरी अच्छा भी जरूरत है, क्योंकि SBIP और IBPSP और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, तो आपका वोकाबुलरी अच्छा होगा तो आप उस पेपर में अच्छे वर्ड यूज करेंगे, तो उसका आपका लेटर और आपका ऐसे भी अच्छा होंगे, आप अपडेट भी रहेंगे, आप अपडेट भी हैं एकदम. So न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंकिंग स्टूडेंट, बट स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है. स्टूडेंट्स फील कि मैम कौन सा न्यूज़पेपर रीड करें, कि हाँ हिंदू करें, इकोनॉमिक टाइम्स करें, या फिर हिंदुस्तान, मतलब आपके बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स हैं, तो व्हाट यू रिकमेंड कि कौन सा पेपर बेस्ट है, या फिर व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो आई थिंक द हिंदू भी अच्छा है एंड इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स मैं बोलूँगा क्योंकि एक आपको फिनेंशियल अवेयरनेस भी चाहिए बैंकिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि बैंकिंग इसमें बहुत सारे न्यू टर्मिनोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो आप जाएंगे एवं आपका इंटरव्यू में GD भी होंगे तो आपको उसको जरूरत पड़ेंगे कि आपका फिनेंशियल अवेयरनेस कैसा है, क्योंकि जो पैनल आपको चेक करेंगे जो आपका क्या है. सो आई थिंक आपका इंग्लिश में भी हेल्प करेंगे, आपका कॉमन सेंस एंड आपका राइटिंग का क्वालिटी भी अच्छे होंगे, एंड आपका फिनेंशियल अवेयरनेस भी अच्छे होंगे. राइट. तो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या फिर एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना? मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना में मैंडेटरी भी नहीं है, आप पढ़ेंगे तो अच्छा है, आप दोनों पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है. ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्लियर नहीं होंगे, बट आप यू विल गेट अ गुड एज यूजिंग न्यूज़पेपर. एंड लाइक अगर हम प्री की बात करें, है ना, अगर हम प्री के इंग्लिश की बात करें सेक्शन में, तो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो मैंने देखा, आई हैव सीन स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज. सम स्टूडेंट्स फील कि हम कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट ना करें बिकॉज इट्स वेरी लेंथी, और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें हमें 10 तो एटलीस्ट स्कोर हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस टॉपिक. तो व्हाट यू फील इज द राइट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्टिंग द इंग्लिश? ओके, सो एक प्रीलिम्स में आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एक प्रॉब्लम है, आप जब क्वेश्चन के चूज करेंगे तो आपको उसमें टाइम निकल जाएंगे. तो अच्छा है आप सीक्वेंस ही मेंटेन करिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन में. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा तो उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पैसेज पढ़ लेंगे बट आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे. सो आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचा, तो आपका पैसेज पढ़ने का कोई एक काम कर सकते हैं कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम अच्छा रहेंगे, सो आप क्वेश्चन के अच्छे से पढ़ेंगे आपको कर. एंड मेरा एक प्रॉब्लम है पैराजम्बल, बिकॉज पैराजम्बल का प्रॉब्लम यही है कि एक सीक्वेंस गलत हो जाएंगे तो 5 ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. राइट. तो मैं पैराजम्बल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर, क्योंकि उसमें जब एक गलत हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की है, टाइम टेकिंग, थोड़ा सा उसको हम एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं. बट
अलग से मैं एकदम सेम सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं। ओके, एंड स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अगर हमें प्री क्वालिफाई करना है तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ऐसा स्टूडेंट सोचता है कि मैम सेफ स्कोर क्या है, और मैथ्स, जैसे हमने मैथ्स की बात की और इंग्लिश की मैं दोनों की बात करूंगी, तो हम सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए, किस तरह से हमें एक स्कोर ताकि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए? So ekdam I will tell you the ground reality, but that this time there is no safe score. Okay. Because the cutoff is very high. You cannot even imagine about the cutoff. So don't set a mindset before the going to exam hall. Okay. Just do your best and don't think about it. That how should I do your 100%, give your 100% and do whatever you can. So but जब सेफ स्कोर का अटेम्प्ट पीओ के प्रीलिम्स में कट ऑफ 65, 60, 50 और 60 के बीच में रहते हैं, तो आप इंग्लिश में 20 और रीजनिंग और मैथ में 25 करके आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड क्लरिकल में 80 के आप भी चल जाते, तो आपको इंग्लिश में आपको 25 प्लस अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा इजी होता है अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मैथ रीजनिंग में भी गेट टफ, टाइम टेकिंग नहीं होती इंग्लिश, मैथ्स वगैरह में टाइम बहुत लग जाता है हर क्वेश्चन में। एकदम एवं and you get enough time in English section, even you can complete all the section in 15 minutes, 18 minutes. So don't set a mindset that I would only attempt 20 or 25. Just give your 100% and do whatever you can. So जो हमारे पीओ में सेक्शनल टाइमिंग भी होती है ना, कि हर टाइमिंग इतने में हमें ख़त्म करना होता है, तो स्टूडेंट्स का जैसे पेपर उसमें कैसे स्ट्रैटेजी करनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड। या सो मैथ्स, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक ओनली, कि मैथ्स और इंग्लिश में कि हम कैसे इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो टेलिंग अबाउट मैथ, सो डू योर फास्ट टैग मैथ एज सुन एज पॉसिबल। मीन्स in fast tag math you get 10 to 15 question. Do this in 5 to 6 minutes. Okay. And the rest of things like arithmetic, because the arithmetic question is long, you have to read the question and that is time taking. So give enough time for that section. And you need enough conception. Then one thing I can suggest that don't go for short tricks. Okay. क्लियर योर एकदम मैथ के लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाना चाहिए। आपको कॉन्सेप्शन जब क्लियर होंगे तब आप ही नीचे आपका शॉर्ट ट्रिक्स बना लेंगे। बिकॉज एसबीआई की अगर हम बात करें तो वो तो हम कई बार क्वेश्चंस न्यू एकदम आप मेंस में जाएंगे तो आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो आप कभी तक नहीं देखा नहीं होगा। सो आप जब एक सर को फॉलो करेंगे कि उसका शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो उसमें टाइम जब आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका वो थिंग आपका माइंड में घुसा हुआ है, क्योंकि वो ट्रिक्स तो आप नहीं कर सकते। तो आई वुड सजेस्ट दैट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड देन। ओके, सो मैथ्स एंड इंग्लिश में हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। आई होप स्टूडेंट्स को सारे मेन पॉइंट्स जो होते हैं कन्फ्यूजन वाले वो क्लियर होंगे। व्हाट अबाउट लाइक वी हैव मैथ्स, English and reasoning. Yes. So what math generally बोला जाता है कि बैंकिंग की रीजनिंग इज अ गुड लेवल। एकदम। So उसके लिए कैसे आपने प्रिपरेशन की? जैसे कि आप तो मेडिकल स्टूडेंट थे, देन यू हैव रेड जीएस एंड ऑल, तो फिर रीजनिंग थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है जो हम पढ़े नहीं है। तो उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन? सो रीजनिंग में 2 सेक्शन है, एक पाजल, आप जानते हैं कि बैंकिंग में पाजल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक मिसलेनियस सेक्शन। राइट। सो पाजल की बात करेंगे। पहले पाजल लाइक यू डोंट गेट डिमोटिवेटेड व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग पाजल, लाइक you can 10 minutes to 15 minutes to solve a single puzzle. Then you maybe get demotivated, but don't think about that. आप जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे आपका टाइम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एंड पाजल का मेन की फोकस है आपका प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। एंड मिसलेनियस पार्ट में बहुत सारे टॉपिक है, लाइक ब्लड रिलेशन एंड blood relation, then distance, direction, and syllogism, inequality. So इसके लिए आपको conception clear कर लेंगे,
देन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके, बट स्टिल फॉर दिस यू नीड एन एजुकेटर, आपको किसी ना किसी से एकदम, पढ़ना होगा। तो एकदम। आपने अपनी प्रिपरेशन जैसे कि रीजनिंग की, एकदम। वो आपने कैसे की? So मैं Omkus Lamba sir, he's called the Pajil guru of the banking sector. Yeah, right. So because he gave, man, that means if you get the tips from his, then you don't think about any other educator, because his thumb rule, his thread method gives you a good edge and gives a good clarity about conception. So just follow him and follow what he told to you. So just follow him and you could so one thing I can suggest in this section, that don't at first don't try to see the solution of the teacher. At first try yourself, Okay. and then saw the solution of Because teacher. you understand the question एकदम, well at that एकदम moment. एकदम Yeah. देन आपको टीचर का कॉन्सेप्शन भी अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आपको आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, आप थोड़ा नीचे एंड इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। Okay. एंड मिसलेनियस के लिए मिसलेनियस के मैं पुनीत सर के फॉलो करता हूँ, एंड पुनीत सर से बहुत सारे कॉन्सेप्शन मेरे क्लियर हुआ, एंड उसके बाद मैं अंकुश सर से प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाता है। एंड आई थिंक दिस टू टीचर इज इनफ फॉर यू, यू डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट। पेपर अटेम्प्ट करने की अगर हम बात करें फॉर द प्री एग्जाम, एकदम व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट, क्योंकि रीजनिंग में पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में टाइम लग गया, एकदम। या इनिशियली लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम। फिर धीरे धीरे यू नो गेट टू नो कि यार ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी? बिकॉज एज वी डिस्कस स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? सो रीजनिंग सेक्शन के लिए एक यू कैन अटेम्प्ट 35% because reasoning section is very easy. If you good conception, you can attempt completely 35%. For both clerical and bank. PO, not for PO, you can attempt up to 30 question. Okay. In clerical you can attempt 35%. And PO? And PO up to 30 question you can attempt. Okay. And what is the difference between the level of the question? So level of the question is that like the puzzle is थोड़ा लेंदी होता है, and सिलोगिज्म थोड़ा सा घुमा फिरा कर देता है, क्योंकि like you can time you need some time to get over the question. So तो मैं अटेम्प्ट करने का मेरा स्ट्रेटेजी है, आप एकदम क्वेश्चन एक से स्टार्ट कीजिएगा, एंड इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं भी इस प्रॉब्लम में फंस गया। क्या मेरा क्लरिकल में लास्ट में एक पजल था, मैं उसको सॉल्व कर लिया, बट मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट के लिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फर्स्ट पजल सब पजल कंप्लीट कर लीजिए, देन आप मिसलेनियस करिए, देन आपको 35% अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, सो बस बैंकिंग और हम इसमें कह सकते हैं कि लेवल में थोड़ा सा अप एंड डाउन, मगर टॉपिक सारे सेम होते हैं, तो वही के स्टूडेंट्स एक प्रॉपर लेवल से प्रिपरेशन करें तो दे कैन गो अहेड। या ओके, ग्रेट। सो रीजनिंग मींस ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड अच्छा, आपने जैसे इंग्लिश की अगर हम प्री की बात करें, बैंकिंग में क्लरिकल और पीओ दोनों एग्जाम्स की, तो क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग का कितना इम्पैक्ट है, एंड हाउ स्टूडेंट लाइक विच ऑप्शन ही शुड ऑप्ट, तो आपका क्या टेक है उस पर? सो मैं तो अनअकैडमी प्लस का स्टूडेंट था, एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद अनअकैडमी। ओके, तो मैं सब स्टूडेंट का अनअकैडमी सजेस्ट, क्योंकि एंड दिस टाइम ऑल द गुड एजुकेटेड स्टडी इन अनअकैडमी, देयर आर लॉट ऑफ टीचर। आई थिंक दैट इन माय टाइम दैट देयर आर some, but in this time there is lot of teacher, and all of them are very good. So I think you should need a coaching, because अब जब पहले शुरू करेंगे आपको एक गाइडेंस चाहिए रहेगा, राइट। आप गाइडेंस के बिना भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा, 1-2 साल और लग जाएंगे, ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो आप जब एक कोचिंग लेंगे तो आपको क्वेश्चन का क्लैरिटी, आपका सिलेबस का क्लैरिटी आ जाएंगे, क्या क्वेश्चन आता है, एंड आपका बेसिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। एंड आपको टीचर से अच्छे से क्वेश्चन भी मिलेंगे जो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे आएंगे। सो आई थिंक you should go for Unacademy. I will suggest, because I am also a student of Unacademy, so I am completely satisfied, and I think this is very good platform for all the new aspirant, and
एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हैं बिकॉज इनिशियली हमारा लाइक इससे पहले हम हमेशा ऑफलाइन में पढ़ते रहे. दिस इज लाइक इमर्जिंग सेक्टर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. सो क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या फिर प्रॉब्लम है? आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि एक बात बोलो, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में आपको जाने आने में टाइम लग जाएंगे एंड उसका जो शेड्यूल है आपको वही मेंटेन करना पड़ेगा. बट इन ऑनलाइन यू हैव ऑल द थिंग्स, you can do all your classes when you will need. That means all the classes is recorded. You can see the classes at as per your time. So I think this is a very good, and you don't need to go to anywhere. So time saving भी हो जाएंगे. And आपको सारे like offline center में आपको जब एक ईयर का कोर्स होंगे तो आपको एक ईयर ही लग जाएंगे पूरे सिलेबस कंप्लीट होने में. बट आप ऑनलाइन से ना आपको पास सारी आप चाहेंगे तो एक मंथ में सब सारी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे. तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी गुड फॉर दिस रीजन बिकॉज you don't need to depend on someone. You have everything. Just go through it and you can complete all your syllabus in 1 month. Okay, great. And what about the mocks? Pre की अगर मैं बात करूँ, like कुछ students are very confused. Students feel कि एक मॉक करना चाहिए every day, या फिर कई students के दिन में 2-3 मॉक्स करते हैं. तो what is the best strategy of mocks, and mocks की importance कितनी है for these exams? So मेरे को एक बात बोलना कि आप पहले दिन से मॉक देना चाहिए क्योंकि आपको मॉक एक अच्छे चीज़ यही है कि वो आपका जो कितना कौन सा आपका वीक पॉइंट है वो आपको समझ आएंगे. क्योंकि एंड like if I can tell that in puzzle they will show you that you take a large time to solve the puzzle, so then you can recover that, you can rectify that place. Okay. So and एक मॉक देने से आपको क्या आपका पोजीशन भी मिल जाए, परसेंटाइल से आप कहाँ पे है उसको, तो आपको आपके वीक सेक्टर्स पता चलते रहते हैं, उसमें आप उसमें काम अच्छे से कर सकते हैं. एंड सो मेरा बात है आप पहले दिन से मॉक देना शुरू कर दीजिए. आपको धीरे धीरे लाइक व्हेन you cannot expect that you will get 90 percentile 80 percentile, but just starting with and then you can see your improvement. And एग्जाम से पहले आप दिन में 2-3 मॉक देना चाहिए क्योंकि उससे आपका स्पीड एंड आपको एग्जाम का जो माहौल है ना उसके आपको हैबिचुएट हो जाएंगे. जे आपको लाइक आपको स्पीड भी आपकी मेंटेन होने लगती है साथ साथ में. एकदम. ग्रेट. तो आपने कितने मार्क्स दिए फर्स्ट डे से मार्क्स? बिकॉज मेरे को ये गाइडेंस नहीं थे. नोबडी गिव्स मी दिस एडवाइस, बट before exam I gave 3 to 4 marks in a day. And this gave me I think this will help me a very good, like I was totally habituated with the environment of the exam hall, because I know that and you can like this is very good because sometimes you get some experience. like एक बात मैं बोलता हूँ, like एग्जाम हॉल में आप कोई भी क्वेश्चन में फंस सकते हैं, तो आपका ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है क्योंकि like मेरा RRBPO सॉल्व करके ही रहूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं. मेरा RRBPO प्रीलिम्स में ऐसा ही हुआ था कि मेरा जब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड विद रीजनिंग, मेरा जब फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ईजी थे, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंस से वो स्टार्ट किया था, बट मेरा हो ही नहीं. फिर 5 मिनट के बाद मैं उसको छोड़ दिया. फिर 30 मिनट्स के बाद उसके फिर लौट आया, उसको सॉल्व किया, बट मैं सॉल्व नहीं किया एंड मेरे से 10 मिनट लॉस्ट हो गया. ये तो पुष्प वाली बात होगी कि रुकेगा मैं झुकेंगे नहीं. सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको आप जब मॉक देंगे तो आप इस प्रॉब्लम का आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे. क्योंकि आप एग्जाम हॉल में आपको ईगो नहीं रखना चाहिए. लाइक ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं तो ये करके ही रहूंगी, बट लाइक यू फर्स्ट यू अटेम्प्ट, then if this is not happen, then try second time, then leave it, because there is a lot of question. If you fall for one question, then your whole exam will be. And one more thing, मैंने जो notice किया, like being an educator, students are confused regarding the mock test. मैंने आपको कहा तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें 3-4 मॉक्स करने चाहिए, बट what I have felt कि स्टूडेंट्स उसका एनालिसिस नहीं करते. एकदम. So and they just are focusing on the marks कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, एकदम. तो what is that, and उसमें आपके साथ कैसे हुआ? एकदम है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका वीक पॉइंट, आपका कॉन्सेप्ट, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे, वो आपको एडवाइस मिल जाएंगे. तो
आपको जो भी मॉक्स देंगे उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आपकी इंग्लिश में कौन कौन से सेक्शन में आप नहीं कर पा रहे, क्वांट में कौन कौन से सेक्शन में आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन कौन सी पाजल आपसे नहीं हो रहे, देन प्रैक्टिस दोज थिंग्स, बिकॉज आप केवल मॉक ही दे जाएंगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, right. उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होंगे। जितना टाइम हमें मॉक में लगता है उससे ज्यादा एनालिसिस में देना चाहिए। इवन बिकॉज फॉर प्रीलिम्स यू नीड सम लाइक यू नीड गुड स्ट्रेटेजी। तो आप मॉक देंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपका खुद का स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को उससे कौन सा सेक्शन आगे करना पड़ेगा, कौन सा पिछले करना पड़ेगा। तो मॉक एनालिसिस करके आप ये बात कि आपने ये बहुत सही बात बोली कि मॉक से ही आपकी स्ट्रैटेजी बनती है एकदम कि अब मैं कहाँ वीक हूँ और मुझे कहाँ स्ट्रांग और मुझे किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो योर मॉक कैन टेल योर स्ट्रैटेजी। एकदम दैट्स राइट। बहुत अच्छी बात बताई आपने स्टूडेंट्स। आप इसको ध्यान रखिएगा कि मॉक का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू मेक योर स्ट्रैटेजी फॉर द फर्दर कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। So we have discussed about the three subjects आपके आते हैं एंड प्री और मेन क्लर्क और पीओ की अगर मैं बात करूँ, मैं दोनों को साथ में लेके आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। तो मेंस पे कितना टाइम मिल जाता है दोनों एग्जाम्स में? means you will get nearly about 1 month after prelims. Okay, after prelims 1 like I in my SBIPO prelims was on 21st November and my mains was on 2nd January, so nearly about 1 month or more than 1 month. Okay, so क्या 1 मंथ के अंदर मेंस की प्रिपरेशन हो सकती है? नहीं हो सकते, एकदम नहीं हो सकते। तो फिर कैसे स्टूडेंट्स कैसे करें कि मेंस की प्रिपरेशन लाइक? पहली बात है, आपको प्रीलिम्स और मेंस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। कोई डिफरेंशिएशन एकदम नहीं चाहिए। आप पहले दिन से ही आपको कॉन्सेप्शन पे काम कीजिए, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। मैंने जो देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पहले प्री हो जाए, एकदम प्री तो निकल जाए, है ना, मतलब एक टैग चाहते हैं कि प्री क्वालिफाई किया है। एकदम बट स्टूडेंट्स को इस कांसेप्ट से, मतलब इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना चाहिए कि आपको पहले से फर्स्ट डे से प्रॉपर प्रिपरेशन बेसिक्स से करनी चाहिए ताकि हम मेंस में भी, क्योंकि प्रीलिम के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं लाइक देयर इज अ सब्जेक्ट इन मेंस दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड आई नेवर प्रिपेयर्ड दैट सब्जेक्ट एंड आई थिंक दैट आफ्टर प्रीलिम आई विल कवर इट एंड I will tell the truth, I never completed the subject and that so this is my own experience that don't fall for that after pre I will cover means just start your preparation from the first day because if you started preparation for means your prelims will automatically clear you don't need to prepare for other. So means प्री से ही हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है। तो फिर भी मैं अगर हम इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करें, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स इन मेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद जीएस ओनली फर्स्ट, क्योंकि एक ही ये नया सब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या ये लास्ट 30 डेज में जो होता है तब प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और या पहले से करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या सकती है? सो जीएस का now there is a new trend that GS is completely unpredictable. Okay. So आप ये सोचेंगे कि प्रीलिम्स के बाद जीए करेंगे तो आप कभी जीए नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको डे 1 से ही जीए की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जीए इज लाइक यू नीड टू रिमेंबर द डाटा, यू नीड टू रिमेंबर द न्यूज़। सो आप ये सोचेंगे कि प्रीलिम्स के बाद हम वो रट्टा मार लेंगे तो वो काम नहीं चलेंगे, क्योंकि जीएस का फंडा ही है आपको जस्ट रिवाइज more and more, then you will enough easily you can remember the news. If you try to remember in one day you cannot complete it. So and मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस देना चाहूँगी, आप पहले दिन से ही जीएस को स्टार्ट कीजिए कि एंड डेली बेसिस से आप जीएस को कंप्लीट कीजिए, देन यू विल गेट। जीएस में बेसिकली हमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक बैंकिंग अवेयरनेस होती है, करंट अफेयर्स होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? ओके, सो बैंकिंग अवेयरनेस केवल जीएस में ही नहीं, आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में वो बैंकिंग अवेयरनेस भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो एंड बैंकिंग अवेयरनेस now there is a trend that there is not too much question from banking sector, most of the question from current affairs. But the banking sector is important because if you have not conception about banking awareness, then you cannot understand the current affairs news, because there is certain terms like
NPCI, PLI. You for this you need banking awareness. अच्छा, If you completed your banking awareness, तो इवेंचुअली एक ही पार्ट है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस होगा तो आपको करंट current अफेयर्स affairs भी भी समझ में आ जाएंगे क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आपको जब समझ में नहीं आएंगे तो आप करंट अफेयर्स भी नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, ओके। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं दोनों सर को रिकमेंड करता हूँ। कपिल सर is my favorite teacher, and obviously Mr. Sir, both are there available in Unacademy, and you can follow one of them. Both educator is very good and they give you everything about the banking awareness. And after you completed the banking awareness course, and you can easily understand the current affairs. And for current affairs you also follow both of them. बट करंट अफेयर्स की कितने मंथ की करंट अफेयर्स हमें करंट अफेयर्स आपको 4 महीने के तो अच्छे से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो 6 मंथ का ठीक है कर सकते हैं। बट 4 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड करंट अफेयर्स के लिए like there is you that means there is a misconception that if you read the one liner like the headline you cannot get good marks in current affairs. You need to read the whole news because there is so much data in the news. And क्वेश्चन वही से आते हैं like SBI कंपनी को लोन दिया तो आपको क्वेश्चन है कि कितना लोन दिया और कौन सो आपको ये और कौन सी कंपनी को किस चीज के लिए लोन दिया, तो आपको फुल न्यूज कवर करना चाहिए क्योंकि उसके लिए क्योंकि मतलब करंट अफेयर्स को वन लाइनर्स की तरह नहीं ले सकते बैंकिंग सेक्टर में एकदम, क्योंकि उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है आपको करंट अफेयर्स में और आपकी रीडिंग और इंग्लिश में आरसीज में हेल्प करेगा, तो इसलिए आपके लिए न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके ग्रेट। तो करंट अफेयर्स आपने ऐसे ही कवर की, ऐसे कुछ चैलेंज जो आपको करंट अफेयर्स मुझे मैं आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आफ्टर प्रीलिम्स, सो मुझे रट्टा नहीं आ रहे थे। मैं बहुत सारे रिवीजन किया बट मेरे को दिमाग में नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, एंड मेरा जीएस सेक्शन उतना अच्छा भी नहीं गया। तो इसीलिए मैं नया स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा, एंड you can take this strategy that you should complete the whole week and like Sunday, Monday, Tuesday, and you should revise on the Sunday, like the whole week 5, news 6 is days you revise and then after 1 month you should revise one times that revision is very important. एकदम revision is very important. सो स्टूडेंट्स जीएस आपके फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है मेंस में, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज आई थिंक जीएस इज वेरी स्कोरिंग आल्सो। एकदम जीएस अगर आपको आता है तो आपके श्योर मार्क्स हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें क्या क्वेश्चन है कि कोई नहीं बता सकता, बट जीएस में आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे एंड आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एंड पहले लोग जीएस में ही बहुत सारे मार्क्स लेके कट ऑफ क्लियर करते, they got 30 out of 40, 35 out of 40, but this year the question is quite challenging, so this year cut-off will go down, but if you had good edge over current affairs you can get good marks. Okay, great. So let's come to maths. Maths की अगर हम बात करें तो maths stats वगैरह आ जाता है, and calculation I think pre से mains के level की calculation काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसको कैसे मतलब अटेम्प्ट करना है, पहले तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्री के साथ स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी जो डिफरेंस लेवल आता है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? So मेंस लेवल मैथ में the most important thing is data interpretation, and data interpretation is like in SBIP, IBP the question is not lengthy but the question is very logical. If you get the logic you can solve the question in 1 minute, but उस लॉजिक को समझने आपको बहुत सारा टाइम लगेंगे, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्शन से आपको लॉजिक नहीं समझ में आएंगे। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि there is a difference between prelims level and mains level data interpretation. Right. Like prelims level is like only about calculation. You don't need any conception for data interpretation. But mains level में वो पूरा arithmetic के base ऊपर ही आता है. Like profit. You have calculation according to the concepts also. The concepts भी आपके strong होने चाहिए. Concept भी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि arithmetic like profit and loss के ऊपर data interpretation है, तो आपको profit and loss का chapter तो आना चाहिए ना, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे ना. तो इसीलिए आपको conception भी बहुत अच्छा होना चाहिए.
मीन्स तो ये आप इवेंचुअली प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आप प्री लेवल से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द मेंस क्वेश्चन, क्योंकि मेंस का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर आपने 1-2 गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए तो आपका वो टाइम चला गया है ना, तो वो टाइम सेविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि मेंस में? सो मेंस के लिए मेरा एक थ्योरी है, आपको पहले कौन से क्वेश्चन स्किप करना है ये अच्छे से समझ होना चाहिए, क्योंकि आप एक रॉन्ग क्वेश्चन के अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपका पूरा एग्जाम बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे होगा या नहीं होगा। क्योंकि means is about just attempting only those question you have good command over that question. Because like I can tell about the SBI PO. In SBI PO math is about 60 minutes, but the average attempt is 9 to 10. That means the math section is so hard, so difficult, calculative, and you need like in logical you need to 5 to 6 minutes to understand the logic. And फिर उसके बाद आपको समझ आएंगे जो आप कैसे करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप जब एक रॉन्ग क्वेश्चन को पिक करेंगे तो आपका पूरा एग्जाम एंड इस पे भी ईगो प्रॉब्लम आ जाएंगे। लाइक आप लेके क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, 10 और 12 मिनट्स दे दिए, फिर उसके बाद आपको मन में आई इतना टाइम दे दिए, फिर उसके बाद और अच्छा टाइम देंगे तो हो जाएंगे, इसलिए आपको टाइम ही चले जाएंगे बट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए जिसको आपको अच्छे से आएंगे। सो मैथ्स में हमें थोड़ा सा क्रिस्प रहना है कि पता होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, अटेम्प्ट करके टाइम से अटेम्प्ट करना। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग में 2 सेक्शन है, पजल एंड मिसलेनियस। सो एंड रीजनिंग लेवल एंड मेंस लेवल पजल इज वेरी लेंथी एंड you cannot think before that I can solve it or not. So my strategy is to complete the miscellaneous things first and then do the puzzle. And you should selective for the puzzle, means which puzzle should you attempt or which should you not. Like there is a blood relation puzzle I never attempt because some brother told me that don't ever attempt this, you can get trapped. So इसी ऐसे भी बॉयज की ब्लड रिलेशंस में थोड़ा सा सेक्शन क्योंकि उसमें दिमाग घूम जाता है कि कौन से किसका पापा है कौन से किसका माँ है, इसलिए मैं उस टाइप का पजल नहीं अटेम्प्ट किया। तो बट मैंने पहले एंड मेंस लेवल रीजनिंग में एक नया टॉपिक आता है क्रिटिकल रीजनिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए आप एंड आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन के अच्छे से समझ आएंगे, आपका कॉन्सेप्शन क्लियर है तो आप अच्छे से कर पाएंगे एंड मिसलेनियस पार्ट का आपका अच्छे से नंबर आ जाएंगे। तो आप पजल बिना पजल के आप काटअप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें कोई अगर हम बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की, तो इसमें कोई सेफ स्कोर होता है या फिर सेफ स्कोर मीन्स लाइक इन SBI PO 10 attempt is 9-10 and for reasoning for math 9-10 attempt is good. If you can attempt better then it is better, and for reasoning if you can attempt more than 15 that is very good. But this time the competition is so high that you cannot think about the safe score because there is so much talented student that they can attempt. So don't think that you just attempt your things that how much you can attempt. What about English? Like about the mains? So English, there is not so much difference between prelims and mains. You just need good conception and like the question is some trapping question, like there is question घुमा फिर के आता है, सेम ही क्वेश्चन आता है बट घुमा फिर के, लाइक ग्रामर तो चेंज ग्रामर नहीं चेंज होते। लाइक SBI PO में एक क्वेश्चन आया था कि वो एक सेंटेंस दे दिए थे तो उसमें एक एरर था और एक 5 ऑप्शन दे दिए तो बोला था उस क्वेश्चन के जैसा टाइप एरर है कौन से क्वेश्चन में ऐसा टाइप एरर है, माने दैट मींस दैट दे गिव नो नॉर्मल एरर डिटेक्शन, मींस जो सेंटेंस दिया था उसे which type of error in that question that is similar to in the option. मींस उसी क्वेश्चन में जैसा एरर है आपको और उसी टाइप का ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, रेक्टिफाई करेगा। अच्छा, ग्रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मींस कैसे ट्विस्ट करके दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। You have to be well versed with the concepts of grammar and vocabulary. एकदम। And what about the RCs? Should student attend क्योंकि मेंस के तो 2-3 RC आ जाए तो RC के लिए आप बट मेंस लेवल RC खूब बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते, वो क्रिस्प होते हैं बट
वो थोड़ा सा कॉन्सेप्शन बेस्ड होता है। आप जब अच्छे से पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा क्लैरिटी आपको हो जाएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन करें। आरसी इज नॉट अ गुड, आरसी इज नॉट अ चैलेंजिंग थिंग। So should a student attempt all the RCs या फिर एक RC क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? इंग्लिश में आप फुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जब कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश नॉट टू मच चैलेंजिंग एंड इवन इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन मेंस। क्योंकि मेंस मैथ और रीजनिंग में आपको क्या होगा, तो आप जीए और इंग्लिश में ही आपको मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं फॉर द रैंकिंग एंड फॉर क्लियरिंग द कट ऑफ्स। Okay, great. So like mains we have discussed and there is a part in mains the descriptive part, yes. So आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर? So descriptive मैंने बोला था कि आपको पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको like there is a descriptive में एक फिनेंशियल से एक टॉपिक आए थे। अच्छा। like SBIP में आए थे कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का कॉन्स एंड प्रोस क्या है। अच्छा। तो आपको एंड उसके लिए आपको अच्छे से आपको एक न्यूट्रल भी होना चाहिए कि आप केवल कौन सी बोल गए, आप क्या प्रोज ही बोले गए, आपके गवर्नमेंट के एकनिस्ट बोले है क्या गवर्नमेंट फॉर में बोला है। इसके लिए आपको न्यूट्रल होना चाहिए एंड आपको अच्छे से वो टॉपिक आने कॉन्स दोनों मेंशन करके एक बैलेंस्ड अप्रोच देना चाहिए, जो कौन से बेटर है कौन सा नहीं है। अच्छा। एंड डिस्क्रिप्टिव में वी हैव टाइपिंग, सो उसके लिए स्टूडेंट्स को अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर सफिशिएंट टाइम होता है कि स्टूडेंट के टाइम होता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि आप जब डिस्क्रिप्टिव तो आप वो तो नया सेक्शन है तो आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं। तो इसलिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई मेड मिस्टेक, don't forget to mention the question number. अच्छा, okay. In SBIP there is clearly mentioned that mention the question number, but वो सेक्शन आके मैं इतना घबरा गया कि मैं क्वेश्चन नंबर ही मेंशन करने भूल गया। तो मेरे कभी-कभार ये सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। मेरे को तो ये टेंशन हो रहा है कि मेरा पेपर ना कैंसिल कर दिया, पर उसके लिए मैं बहुत सारा नंबर भी डिडक्ट कर दिया। तो अच्छा, तो उसके लिए आपको अच्छे से, क्योंकि आप अच्छे से इसे लिखे आपको अच्छे से, बट आपको क्वेश्चन मार्क्स से लिए आपका मार्क्स कम हो गए। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज गुड, सो यू शुड concentrate about that things. So means हमने almost pre-discuss means and अब तो GD तो नहीं हो रहे, लास्ट 2-3 साल से नहीं हो रहे। तो कई स्टूडेंट्स who are studios and all they pre and mains हो जाता है, बट कई स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं इंटरव्यू को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या होगा, what should they prepare। तो आप कितना टाइम होता है आपके मेंस और इंटरव्यू के बीच में, एंड आपको कैसा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सो मेंस मेरा मेंस 2 जनवरी हुआ था एंड उसका 25 जनवरी को उसका रिजल्ट आया एंड 10 जनवरी का मेरा इंटरव्यू था। 10th फरवरी एंड मेरा लक इतना अच्छा कि मैं फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट कैंडिडेट था, तो मेरे को रोस्ट होना ही था क्योंकि मैं कलकत्ता रीजन में फर्स्ट कैंडिडेट था हु गोइंग द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। मैं पहले 8 AM का शिफ्ट था, मैं पहले कैंडिडेट था इंटरव्यू का। तो मेरे को एक बात बोलना चाहिए कि एंड नॉट फॉर इंटरव्यू एंड फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच थिंग्स, बिकॉज आप जब एक्सपेक्ट करेंगे तो आपका ऊपर एक प्रेशर आ जाएंगे एंड आपको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लाइक इन माय प्रीवियस सेक्शन लाइक SBI क्लर्क एंड RRB PO, मैं इतना घबरा जाता हूँ कि मैं आई कैन नॉट गिव माई 100%। देन आई डिसाइडेड दैट डोंट थिंक अबाउट इट, I will go for the exam. If I clear, then I will prepare for the next. If not clear, then for next exam. Because students पहले ही mind में pressure ले लेते हैं कि होगा नहीं हो। So ये चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देते हैं। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस को बहुत सारा अच्छा नहीं था। आई थिंक क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? तो मेरा पहली एक मैं ब्लंडर किया था, क्योंकि मैं जब एंटर किया था तो मेरे को नहीं पता चेयरमैन सर किधर पे है, बट मैं एक अलग सर के पूछा कि मे आई कम इन सर, बट वो अब मेरे को चेयरमैन सर से पूछना चाहिए था क्योंकि ही इज द सीनियर इन द पैनल मेंबर। सो दिस इज द टेक्निकल फॉल्ट। यू शुड कंसंट्रेट, यू शुड रिमेंबर दैट ये नर्वसनेस में हो जाता है। तो फिर उसके बाद चेयरमैन फिर एंटर किया। देन आफ्टर आई स्टार्टेड गेटिंग दैट गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, देन चेयरमैन सर टेक योर सीट एंड आई सिट डाउन। And the first question is that he asked me that why your marks in secondary is so less, because my secondary, higher secondary and other marks is very good, medical, but not in graduation second year. In graduation second year में मेरा marks उतना अच्छा नहीं था। तो
तो उन्हें मेरे को बोला कि आप पढ़ते पढ़ते नहीं थे। ये बात मुझे बहुत हार्ट किया एंड अच्छा। मेरा मोरल डाउन हो गया कि सर ऐसा बोला कि आप पढ़ते पढ़ते नहीं थे। तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज पीओ का एसबीआई और आईबीपीएस के वो आपको प्रेशर में डालेंगे। दे विल ट्राई टू चेक योर कॉन्फिडेंस। एकदम आपको प्रेशर में आपको डालेंगे तो आपको मोरल डाउन नहीं होने, जो भी होगा आपको स्माइल के साथ आपको एक्सेप्ट करना। एंड that time I made again blunder that if I accept the things that I did not study, then the matter will be stopped there. But I try to tell about try to justify. Then sir asked that I told that sir my interest went, so I don't think that this is right things for. If you keep on saying then they will cross question the things. So just remember things that don't be so deep that they will start a short question that you cannot answer the questions. Right. फिर उसके बाद एक सर, तो उसके लिए एक बात हुई थी कि वो सर चेयरमैन सर मुझे पढ़ा कि फॉरेन में कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या होता है। मैं बोला, फिर उसके बाद एक सर मुझे पूछा कि आप तो चंदन नगर में रहते हैं, तो चंदन नगर में सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं। ओके, मींस आपकी ज़्यादा एकेडमिक्स या आपके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एसबीआई और आईबीपीएस में एक डिफरेंस है कि एसबीआई में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देता है एंड आईबीपीएस में वो आपको बैंकिंग का नॉलेज क्या है उसके ऊपर। तो एसबीआई के लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन मेरा आपका हॉबी पे क्वेश्चन आ सकता है, आपका ड्रीम में। and even I tell then chairman sir asked me that what is your dream, I told that I want to be a doctor। then sir बोला कि आप तो थे, फिर क्या क्यों नहीं हुआ। मैं बोला सर I cannot prepare good। then सर बोला थे सब फिजिक्स क्यों लिया, बायोलॉजी क्यों नहीं लिया। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। इवन one sir asked me about my hobby, what is your hobby, so like general questions regarding your personality and but you have to be confident but don't argue with them or एकदम आप जो बोलेंगे वो उसको स्माइल के साथ एक्सेप्ट करेंगे एंड लीव दैट मैटर। Okay, that is the main important because your confidence is the best। and again I will tell that don't expect too much, then this will create a huge pressure on you, then obviously you will become nervous। so just go there and everything will be fine। Great. So one more thing I want to ask, see we have discussed the whole strategies, pre, mains and interview, but you told me in the starting of the conversation that you went for WBC, medical then WBC। so initially you have faced the failures, तो कहीं ना कहीं डर होता है दिमाग में failures का। and students के mind में भी when they are starting for the competitive exams preparation they have one biggest phobia, वो mind में होता ही है, बहुत बड़ा section हमारे mind में, क्या नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा इतना सारा इतने तो how to overcome that fear and आपने उसको कैसे overcome किया and अपनी studies को consistent कैसे रखा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम है। आपका एक एग्जाम नहीं क्लियर तो दूसरा हो जाएंगे। डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस, बिकॉज इफ यू थिंक टू मच अबाउट दिस योर नेक्स्ट एग्जाम विल बी distracted। because for this reason I tell you that accept the failure, because failure is most important, because it will give you the knowledge that in which section should you recover, which section should you improvement। so don't take failure as a failure। take this as a key to success। then you will obviously succeed and if you working hard and you are in right direction, then obviously I can guarantee you that you will be succeed in one day। So शोमदीप, जैसे कि मैंने पूछा कि फेलियर्स से डील करना एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कंसिस्टेंट रहना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने कैसे अपनी पढ़ाई को एक कंसिस्टेंट रखा, किस तरह से आपका स्केड्यूल था एवरीडे का, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर एवरीडे मेंटेन रखते थे। So I think consistency is most important because I also told my friend that this 1 or 2 year sacrifice or 2 year hard working will give you the another 50 years। so I think if you prepare for this 2 year with all your 100%, with all your effort, then your life will be set। so I think you should be consistent। don't think about like there is such other distracting things like family, festival। so sacrifice all the things, just prepare for the banking exam just for 1 year। and then and how to maintain the daily schedule। so daily schedule maintain करने के लिए आपको daily editorial तो एक बहुत पॉइंट है। आप
सुबह वो पॉइंट पर, एंड आपको जो डेली करंट अफेयर्स तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आप डेली थोड़ा सा वोकाबुलरी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 10 वर्ड्स की 20 वर्ड्स आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड डेली पजल प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको डेली 4 और 5 प्रीलिम्स और मेंस लेवल पजल आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएंगे। एंड डेली एक मॉक तो देना ही बात है। And one more thing that I'm telling about the quant, that remember the 1 to 20 tables, square, cubes. So remember all the things and practice this every day. And one more question, students generally ask this because students को एक curiosity होती है पढ़ने से starting करने, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा यार? So like what is this? इसका आंसर क्या होगा आपके according? इसका कुछ आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि you know that how much study do you need, because किसी को change करेगा, depend करता है, किसी को 4 घंटे में हो जाएगा, किसी को 12 घंटे में, बट जितना भी टाइम दे रहे हैं उसको अच्छे से देंगे, क्योंकि आप पढ़ने के बाद आप फोन में बिजी हो जाएगी, लैपटॉप में बिजी, ये नहीं चाहिए। आप जितना भी टाइम देखिए 3 घंटे या 4 घंटे उसको अच्छे से देंगे, फिर आपको कुछ अच्छा। एंड डोंट थिंक अबाउट द अदर स्ट्रेटजी दैट ही studied for 12 hours, so I should study for 12. Don't do these things. You know that how much time do you need for your study. It depends upon you. Depends upon कितने depends upon. Okay, great. So मतलब आपसे मैंने काफ़ी सीरियस और एकेडमिक्स की जर्नी आपको दोबारा लेके गई कि आपकी की प्रिपरेशन, बट अब थोड़ा सा फन पार्ट रखते हैं। एंड आई लास्ट सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, क्योंकि आप ऑफिसर हो चुके हैं तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों से डील करना है जो आपसे बहुत क्वेश्चन तो एक रैपिड फायर आपके साथ, ओके, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप बहुत स्पीड से आंसर देंगे, ठीक है, एंड देन वी हैव अ गुड हैम्पर फॉर यू, ओके। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड बिरयानी। Okay. Are you an introvert, extrovert or ambivert? I'm totally introvert, ma'am. Totally introvert. Totally. Okay, means don't talk to people much. No, I feel scared too, because I feel social gathering. But you have to face that now. Yes, I know that I have to deal with the customer. This is my... Okay. Which social media app you use the most? Facebook and WhatsApp. Facebook and WhatsApp, okay. And do you like sports? If yes, what sport do you watch and play? I love football. You're from West Bengal. I was thinking that. Yes, because Bengal का football का एक अलग legacy है. Okay. So. Okay. Do you share memes with your friends? If yes, any of your recent fave meme? So ऑस्कर में विल स्मिथ का केस भी हुआ, क्या वो स्लैप कर दो, उसके लिए बहुत सारे मीम हो गया, क्या हुआ। Okay, so, मैंने भी देखा था, लाइक यार मैंने वाइफ के लिए तो स्टैंड दिया था। Yes, I think there is a difference between the personal and there is meme, like there's a slight violence is not acceptable anywhere in any form, so I think that was wrong. So this was really nice, Shomodeep, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, एंड मुझे लगता है बहुत अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे, you are giving quick answer. So this is a small hamper from an academy, and I hope you like it. A lot of chocolates are there. Thank you so much, ma'am. And I have also nice experience with. So a lot of weight you can gain before you join your office. Yes. Okay. So it was really nice talking to you, Somadeep. Thank you so much. And I hope आपने भी enjoy किया होगा. I want you to. I want कि हम आप किसी अपने फ्रेंड को टैग करें जिनसे हम उनकी जर्नी जान सकें, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जान सकें और स्टूडेंट्स को उनसे गाइडेंस मिल सके। एनी ऑफ यू? मेरा एक फ्रेंड है अनन्या, वो भी इस साल SPIPO में सिलेक्टेड है कलकत्ता रीजन में, एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड सो आई थिंक you should call her for this show because she's a very charming girl, and I think that is very good for her. Okay, that's really great. So Ananya, we are hoping to meet you in the next sessions. If you want to give some message to those aspirants who are preparing, what message you want to give to those aspirants? So first of all, don't expect too much things because it will create a pressure on you. Just accept all the things that is happening. And next things is that this 2-year hard work is going to be your life journey, so sacrifice all these things for this 2 year. I think you will be succeeding in one day, and don't take failure too much serious because failure is the key of success, and you should gain a lot of knowledge from the failure. So don't take failure as a failure because this failure will give you the way of success. So don't take failure as failure, accept it and prepare for the next exam.
and best of luck for all the student. I think you will all be selected in SBIPO in coming year. Thank you so much. So Sumadev, how was the experience of this interview? कैसा लगा आपको? This is a very good experience, and this is a very memorable thing of my life. I think this will give all the students a motivation, and I think I can help all the students in upcoming years. Great. So that was really nice session. They were really nice talking to you. So guys, this was Somadeep with his life journey, with his preparation journey for SBI and IBPS clerical and PO exams. I hope you have understood a lot of things. आपको काफ़ी insight मिला होगा कि हमें किस तरह से preparation करनी चाहिए, and you might have get or motivated as well. So guys, ऐसे ही sessions हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. तो मिलेंगे next session में. Thank you so much guys. Bye. Take care and be happy.